یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان آسٹریلیا ٹیسٹ میچ کو انجوائے کرنے کے لیے شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد پنڈی اسٹیڈیم پہنچ گئی ہے۔ شائقین کرکٹ ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے پرجوش ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روز نیوز سعد عباسی سے۔ جی سعد عباسی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی سر، موجود ہوں پنڈی اسٹیڈیم کے باہر، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخی ٹیسٹ میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان۔ شائقین کرکٹ کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت پنڈی اسٹیڈیم کے باہر پہنچ کر شروع ہو چکی ہے۔ ہم موجود ہے شائقین، ان سے بات کریں گے کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے عرصے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے اور آسٹریلیا کی ٹیم ہے، یہ کیسا لگ رہا ہے؟ فرسٹ آف آل تو آسٹریلیا کی ٹیم کو میں آسٹریلیا کی کرکٹ بورڈ کی میں شکر گزار ہوں کہ وہ آئے ہیں پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے اور ایک اچھا میسج دیا ہے باقی بھی انٹرنیشنل ٹیموں کی، کیونکہ ٹاپ کی ٹیم ہے نا، ٹاپ کی ٹیم پاکستان نہیں آ رہی تھی کچھ عرصے سے، بلکہ بالکل 24 سال کے بعد یہ آسٹریلیا کی ٹیم آئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جب آخری دفعہ یہ کھیلے تھے ٹیسٹ میچ تو اس میں شاہد افریدی نے اپنی ڈیبیو کی تھی۔ بالکل، آپ کا فیوریٹ پلیئر کون سا آسٹریلیا میں سے؟ جی، میرا فیوریٹ پلیئر مچل اسٹارک ہے اور ان کو دیکھنا میرا ڈریم تھا، تو انشاءاللہ آج لائیو دیکھیں گے۔ بالکل، جیسے کہہ رہے ہیں کہ لائیو دیکھیں گے، ان کا دیکھنا خواب تھا ان کو کہ پاکستانی میدانوں پہ آسٹریلیا کی ٹیم کھیلتے ہوئے۔ اس وقت اگر پنجاب جاؤں تو لمبی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں، صبح سویرے ہی دونوں ٹیموں کو شائقین کرکٹ سپورٹ کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں، اور میچ شروع ہونے میں کچھ وقت ہی باقی ہے، لیکن جو لوگ ہیں اس کو انجوائے کرنے کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ سعد عباسی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 11 اموات ہوئیں۔ ملک بھر میں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 30,248 ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 36,678 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 953 کیسز رپورٹ ہوئے۔ NCOC کے مطابق کورونا سے متاثر 890 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.59% رہی۔ ملک بھر میں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 30,248 ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 36,678 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 953 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کورونا سے متاثر 890 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.59% رہی۔ موٹر وے M3 فیس پور سے درخانہ تک شدید دھند کے باعث بند۔ موٹر وے M4 دھند کی شدت کے باعث بند کر دی گئی۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے کوٹ مومن تک بھاری گاڑیوں کے لیے بند کر دی گئی۔ شہر میں گرد و نواح میں شدید دھند کا راج ہے۔ شدید دھند کے باعث حد نگاہ کم ہو کر رہ گئی۔ فیروز پور روڈ، رائیونڈ روڈ، دیپال پور روڈ پر شدید دھند، کیم کرن روڈ، گند آسنگ روڈ پر بھی اور چونیا روڈ پر بھی شدید دھند کی لپیٹ میں ہے۔ موٹر وے M3 فیس پور سے درخانہ تک شدید دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M4 دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے کوٹ مومن تک بھاری گاڑیوں کے لیے بند کر دی گئی۔ شہر و گرد و نواح میں شدید دھند کا راج، شدید دھند کے باعث حد نگاہ کم ہو کر رہ گئی۔ فیروز پور روڈ، رائیونڈ روڈ، دیپال پور روڈ پر شدید دھند، کیم کرن روڈ، گندا سنگھ روڈ اور چونیا پر بھی شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئی۔ صادق آباد میں ماچھی گوڑ کے قریب ٹریلر اور موٹر سائیکل کی ٹکر۔ حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کمو شہید کے رہائشی تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں باپ، 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ صادق آباد میں ماچھی گوڑ کے قریب ٹریلر اور موٹر سائیکل کو ٹکر۔ حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کمو کے رہائشی پذیر تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں باپ، 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ روس کی یوکرین کے سب سے بڑے جوہری پاور پلانٹ پر شیلنگ۔ خبر ایجنسی کے مطابق جوہری پاور پلانٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ یوکرین میں آتش زدگی سے جوہری پلانٹ میں ریڈیشن کا لیول بڑھ گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق آگ بجھانے کے لیے فائر فائٹرز کی ٹیمیں پہنچ گئیں۔ یوکرینی وزیر خارجہ کی روس سے شیلنگ روکنے کی اپیل۔ پلانٹ میں دھماکہ ہوا تو چرنوبل واقعے سے 10 گنا زیادہ نقصان پہنچے گا۔ نیوکلیئر پاور پلانٹ پر گولہ باری سے آگاہ ہیں۔ عالمی ایٹمی توانائی کمیشن کے مطابق اس حوالے سے یوکرینی حکام سے رابطے میں ہیں۔
روس کی یوکرین کے سب سے بڑے جوہری پاور پلانٹ پر شیلنگ، خبر ایجنسی کے مطابق جوہری پاور پلانٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ یوکرین میں آتش زدگی سے جوہری پلانٹ میں ریڈیشن کا لیول بڑھ گیا۔ آگ بجھانے کے لیے فائر فائٹر کی ٹیمیں پہنچ گئی۔ یوکرینی وزیر خارجہ کی روس سے شیلنگ روکنے کی اپیل۔ پلانٹ میں دھماکہ ہوا تو چرنوبل واقعے سے 10 گنا زیادہ نقصان پہنچے گا۔ نیوکلیر پاور پلانٹ پر گولہ باری سے آگاہ ہیں، اس حوالے سے یوکرینی حکام سے رابطے میں ہیں۔ پیوٹن کی یوکرین میں روسی افواج کی کامیابیوں کی تعریف۔ روسی فوج یوکرین میں جانوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ یوکرین کی فوج نے ہزاروں غیر ملکیوں کو یرغمال بنایا ہے۔ ہماری افواج نے عوام کے انخلاء کے لیے محفوظ راستہ دیا ہے۔ یوکرینی قوم پرستوں نے محفوظ راستے کو بند کر دیا۔ مرنے والے روسی فوجیوں کے خاندان کی مدد ہماری ذمہ داری ہے۔ ہلاک اور زخمی روسی فوجیوں کے خاندان کے لیے امارات کا اعلان۔ مغرب کے روس مخالف بیانیے کو برباد کر دیں گے۔ یوکرین میں آپشنل اور آپریشن پلان کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ پیوٹن کے یوکرین میں روسی افواج کی کامیابیوں کی تعریف۔ روسی فوج یوکرین میں جانوں کی قربانی دے رہی ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ یوکرین کی فوج نے ہزاروں غیر ملکیوں کو یرغمال بنایا ہے۔ ہماری افواج نے عوام کے انخلاء کے لیے محفوظ راستہ دیا۔ یوکرینی قوم پرستوں نے محفوظ راستوں کو بند کر دیا۔ مرنے والے روسی فوجیوں کے خاندان کی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہلاک اور زخمی روسی فوجیوں کے خاندان کے لیے امارات کا اعلان۔ مغرب کے روس بیانیے کو برباد کر دیں گے۔ یوکرین میں آپشنل اور آپریشن پلان کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ روسی صدر پیوٹن کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ سعودی عرب عالمی امن و استحکام کے لیے مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات پر زور۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سعودی موقف کی وضاحت۔ روسی صدر پیوٹن کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ سعودی عرب عالمی امن و امان استحکام کے لیے مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات پر زور۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سعودی موقف کی وضاحت۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں کمی۔ نیویارک میں امریکی WTI خام تیل کی قیمت میں $2.80 کی کمی آئی۔ 2.53% کمی سے امریکی خام تیل کی قیمت $107.80 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی بیرل خام تیل کی قیمت میں $2.49 کی کمی۔ 2.20% کی کمی سے برطانوی خام تیل کی قیمت $10.40 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں کمی۔ نیویارک میں امریکی WTI خام تیل کی قیمت $2.80 کی کمی دیکھی گئی۔ 2.53% کمی سے امریکی خام تیل کی قیمت $107.80 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی بیرل خام تیل کی قیمت میں $2.49 کی کمی۔ 2.20% کمی سے برطانوی خام تیل کی قیمت $10.40 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ سونے کی فی اونس قیمت میں $5.96 کا اضافہ دیکھا گیا۔ سونے کی قیمت $1,934.48 فی اونس ہو گئی۔ چاندی کی قیمت میں 7 سینٹ کا اضافہ دیکھا گیا۔ 2.50% اضافے سے چاندی کی قیمت $25.26 فی اونس ہو گئی۔ نیویارک میں کاپر کی قیمت میں $8.55 فی پاؤنڈ کا اضافہ دیکھا گیا۔ کاپر کی قیمت میں 1.83% اضافے سے $475.10 فی پاؤنڈ ہو گئی۔ نیویارک میں پلاٹینیم کی فی اونس قیمت میں $3.11 کا اضافہ دیکھا گیا۔ 0.29% اضافے سے پلاٹینیم کی قیمت $1,078.05 فی اونس ہو گئی۔ نیویارک سونے کی فی اونس قیمت میں $5.96 کا اضافہ دیکھا گیا۔ سونے کی قیمت میں $1,934.48 فی اونس ہو گئی۔ نیویارک میں چاندی کی قیمت میں 7 سینٹ کا اضافہ دیکھا گیا۔ 0.26% اضافے سے چاندی کی قیمت میں $25.26 فی اونس ہو گئی۔ کاپر کی قیمت میں $8.55 فی پاؤنڈ کا اضافہ ہو گیا۔
अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसवदा तैयार कर लिया। तहरीक पर 80 से ज्यादा अपोजिशन अरकान के दस्तखत, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF, MNA और MPS मैंगल और दीगर के दस्तखत शामिल हैं। मुल्क में इक्तिसादी ज़बूहाली का शिकार है। मुल्क को माशी बहरानों से निकालने के लिए कोई रोड मैप मौजूद नहीं है। शहबाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान का राब्ता, तहरीक अदम एतमाद के लिए ग्रीन सिग्नल। हुकूमत मुखालिफ बड़े इकदाम के लिए शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। तीनों रहनुमाओं का तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की कमेटी को ग्रीन सिग्नल। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसवदा तैयार कर लिया। ज़राए अपोजिशन के 3 बड़ों आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबतों के बाद तीनों कायदीन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने पर इत्तेफाक कर लिया। तीनों कायदीन ने अपोजिशन की कमेटी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। तीनों कायदीन के राबतों के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हतमी शक्ल दे दी गई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसवदा तैयार कर लिया। तहरीक पर 80 से ज्यादा अपोजिशन अरकान के दस्तखत हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF, ANP, BNP मैंगल और दीगर के दस्तखत हैं। मुल्क इक्तिसादी ज़बूहाली का शिकार है। मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने का कोई रोड मैप नहीं। मुजवज़ा मुसवदे के मुताबिक मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल है। खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुजवज़ा मुसवदे में कहा गया कि कायदे ईवान इस ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। मज़कूरा बाला सूरत हाल के तनाजुर में कायदे ईवान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है। अपोजिशन ने असम्बली इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भी तैयार कर रखी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चेंबर को अलर्ट कर दिया गया। तहरीक अदम एतमाद और रिक्विजिशन किसी भी वक्त जमा करवाई जा सकती है। हुकूमत को घर भेजने का मिशन, अपोजिशन सरगर्म। अदम एतमाद, नून लीग का 48 हुकूमती अरकान असम्बली की हमायत मिलने का दावा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के 16 अरकान कौमी असम्बली हमारे साथ हैं। नून लीग का दावा, हमायत करने वाले अरकान की फहरिस्त नवाज शरीफ को अरसाल कर दी गई। नून लीग के 10 अरकान को आइंदा इलेक्शन में पार्टी टिकट देने की यकीन दहानी। मुस्लिम लीग नून ने हम ख्याल हुकूमती अरकान को 3 मराहिल में तकसीम कर दिया। पहले मरहले में हुकूमती पॉलिसियों से दिलबराश्ता अरकान शामिल होंगे। दूसरे मरहले में हुकूमत के साथ छोड़ने की सोच रखने वाले अरकान शामिल होंगे। तीसरे फेज में देखो और इंतजार करो की सोच रखने वाले अरकान शामिल हैं। हुकूमत की छुट्टी कराने का मिशन, सियासी मुफाहमत का बादशाह सरगर्म। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रहाजगाह आमद, सीनियर सियासतदानों की तफसीली मुलाकात, सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद से मुशावरत। अदम एतमाद के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि शहबाज शरीफ 2 रोज से अलील हैं। सूरत हाल शहबाज शरीफ के सामने रखी है। तहरीक को 2 रोज में पेश करने का मरहला आ गया है। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। हम आखिरी इकदाम तक पहुंच जा चुके हैं। 2 या 5 रोज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो सफर में है, इन्हें हालात का इल्म नहीं। शहबाज शरीफ ने परवेज इलाही को खाने पर बुलाया था, वो नहीं जा सके। फजलुर रहमान ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद में इत्तेहादियों का भी इम्कान है। अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अदम एतमाद के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और अक्सरियत इस वक्त हमारे साथ है। लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ साहब 1-2 रोज से अलील हैं और जो सूरत हाल उनके सामने हमने रखी है, हम हतमी तौर पर आखिरी इकदाम तक पहुंच चुके हैं। 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में वो सफर में है और उनको शायद रास्ते में हालात का इल्म नहीं है। इत्तेहादी को भी इम्कान है।
तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म सियासी महाज पर मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म और काफ लीग की क़यादत के दरमियान 3 दिन में ये दूसरी मुलाकात है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मुअन्निस इलाही की मुलाकात हुई। मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल और इत्तेहाद के अमूर पर गुफ्तगू हुई। काफ लीग से मामला तय करने के लिए असद उमर को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगरचे काम करने पर इत्तफाक है। मुअन्निस इलाही ने कहा कि नस्लों से हमारे खानदान की रवायत है कि हम वादे निभाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म दीगर इत्तेहादी जमातों से भी मुलाकात करेंगे। क्या आपका भी वज़ीर-ए-आज़म को घबराना नहीं है का पैगाम है। सहाफ़ी का स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही से सवाल। इमरान खान बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं। परवेज़ इलाही का जवाब, क्या तहरीक अदमात से कुछ निकलेगा। सहाफ़ी का सवाल, इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। परवेज़ इलाही का जवाब, हांडी में सामान चला गया है, धुआं उठने के बाद पहला उबाल आता है, पहला उबाल आ जाए तो फिर आपको बताएंगे। चला गया अभी अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, तो जब धुआं उठेगा ना, एक उबाला आता है, उसके बाद जौहर साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना। एडी बड़ी हंडी चढ़ी है, निकलेगा ये निकल आएगा। और तहरीक अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आया आपकी तरफ परसों। जौहर साहब, आप जो महंगाई से मुतल्लिक इक़दाम लिए हैं इमरान खान ने, जैसे पेट्रोल, बड़ा अच्छा देखे ना, बड़ा अच्छा स्टेप हुआ है ये महंगाई के हवाले से, और इसका सब एकदम पेट्रोल भी नीचे आया है, इसका बड़ा फ़ायदा होगा, और बिजली भी नीचे आ रही है। और जो 48 घंटे मौलाना फजल रहमान ने कहा है वो तो फजल मान साहब पता है। जौहर साहब, अब आपका ये पैगाम है जो मोनस साहब का पैगाम था वज़ीर आज़म के लिए कि घबराना नहीं है। वो घबराए तो नहीं हुए। अच्छा, घबराए नहीं बिल्कुल, बस ठीक है। पीपल्स पार्टी के कप्तान को मुस्तफा होने की डेडलाइन। इमरान खान के पास 5 दिन की डेडलाइन, खुद मुस्तफा हो जाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि असेंबली तोड़कर हमारा मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो का इमरान खान को चैलेंज। 5 दिन बाद इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। 5 दिन बाद हमारे पास अदम एतमाद के नंबर्स पूरे हो चुके होंगे। हम इस्लामाबाद पहुंचकर तुम्हारा बंदोबस्त कर लेंगे। पीपी चेयरमैन का दावा। कहा कि इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम आपको वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते हैं, आपसे छुटकारा चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम का आप ये मुतालबा खुद मान ले। 5 दिन का डेडलाइन आपके पास है, 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफी हो जाए। दिन के अंदर ही अंदर अगर आप में गैरत है, अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, इलेक्शंस करवा दो और हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे। हम आपको दिखाते हैं कि अवाम किसके साथ है। बुज़दिल हो, खुद नहीं करते हो तो फिर 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर पूरा हो चुके होंगे। हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे। पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद में एक रोज के जलसे की इजाजत देने का फैसला पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज के बायस किया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक पीपल्स पार्टी सिर्फ 9 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा कर सकती है। पीपल्स पार्टी ने 7 मार्च से 9 मार्च तक फैसलाबाद में जलसा करने की इजाजत मांगी है। बाकायदा दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करा दी गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ में कोई तरीन ग्रुप नहीं, पीटीआई में सिर्फ इमरान खान का ही ग्रुप है। हमारे अरकान असेंबली अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। कहा, रूस ज़रदारी की ताकत किसी को खरीद नहीं दे सकते।
और तुम पे इल्जाम लगाते हैं थर वालों कि ये अपना वोट बेचते हैं। खुदारा मुझे वोट दो न दो, इस तोहमत को धो दो कि थर वाला बिकाऊ नहीं है। एक सेठ है यहाँ का, उसको टिकट दे दिया उमरकोट का। वोट थे नहीं, हाँ नोट बेपना थे। जमाते गौसिया के जो मोतकदीन हैं उनसे एक गुजारिश करने आया हूं, जिसने तहरीक इंसाफ को और मुझे छोड़ना है वो आज छोड़ जाए, आज छोड़ जाए। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। कुछ मेरे जानने वाले गौस के मोतकिद, उनके दाएं बाएं मैं देखता हूं आजकल तस्वीरें लगती हैं। क्या हुआ? बिक गए, बिक गए। यार जिसने मुल लगवाना है लगवा लो। आज तंदूर गर्म है, फुल्का लग जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि आटे, चीनी, बिजली की कीमतों में 100% इजाफा किया गया। तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ। तहरीक अदम एतमाद महंगाई के सताए अवाम के लिए असल रिलीफ साबित होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि घी और खुर्दनी तेल की कीमत में इजाफे के बाद 10 रुपए पेट्रोल की कमी अमलन वापस हो चुकी है। LPG और गैस की कीमत में इजाफे के बाद नाम नेहाद रिलीफ हवा में तहलील हो चुका है। अवाम को रिलीफ देना है तो बिजली की कीमतों में माहाना 4 रुपए से ज्यादा इजाफा वापस लेने का ऐलान किया जाए। खदशा है कि 10 रुपए का सियासी रिलीफ आने वाले दिनों में हर शहरी को सैकड़ों रुपए महंगाई की सूरत अदा न करना पड़ जाए। शहबाज शरीफ ने कहा है कि आटे, चीनी, बिजली की कीमतों में 100% इजाफा किया गया। तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ। तहरीक अदम एतमाद महंगाई के सताए अवाम के लिए असल रिलीफ साबित होगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि झूठे हुकूमती पैकेजेस का बोझ भी अवाम को उठाना पड़ेगा। एक तरफ महंगाई के सताए अवाम और दूसरी तरफ लुटेरे हुक्मरान हैं। गंदम, चीनी और LPG की तरह हुकूमत पेट्रोलियम बहरान पर आंखें बंद किए हुए है। मुल्की तजारती खसारा सालाना बुनियादों पर बढ़कर 82% हो गया। गर्दशी कर्ज में 114% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। तजारती खसारा 32 अरब डॉलर मईशत की तबाहाली का बयान है। इस खसारे की कीमत कौन अदा करेगा? मगरबी ममालिक में कौम का पैसा चोरी करने का कोई नहीं सोच सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम तब तबाह होती है जब वो बुराई को बुराई समझना छोड़ देती है। एक शख्स अरबों की चोरी करके बैरून मुल्क बैठा है। यहाँ कहा जा रहा है कि इसे तकरीर करनी और इलेक्शन लड़ने की इजाजत दो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 3 माह की मेहनत के बाद रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी का रोड मैप सामने आया। नौजवान को क़याम पाकिस्तान के मकासद से आगाह करना है। दुनिया व आखिरत में फलाह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना लाजमी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि यूरोप में कोई सोच भी नहीं सकता कि चपड़ासी के अकाउंट से अरबों निकले। मगरबी ममालिक में कौम का पैसा चोरी करने का कोई सोच भी नहीं सकता। कौम तबाह हो जाती है जब वो बुराई को बुराई समझना छोड़ देती है। मगरबी ममालिक इस्लाम के बुनियादी असूलों पर अमल पैरा हैं। जापान में कोई वज़ीर आज़म पकड़ा जाता है तो खुदकुशी कर लेते हैं। एक शख्स अरबों की चोरी करके बैरून मुल्क बैठा है। यहाँ कहा जा रहा है कि उसे तकरीर करने और इलेक्शन लड़ने की इजाजत दो। बरतानिया का जो सोसाइटी है वो हमारे से बहुत आगे है। वो वाकई बुराई को दबाती है और अच्छाई को के साथ खड़ी होती है। उनकी जो एथिक्स है, उनकी जो मोरालिटी हमारे से बहुत आगे है। कभी भी वहां कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो पब्लिक का पैसा चोरी करे। कोई मकसूद चपड़ासी के नाम पे 4.25 अरब रुपया रखते और वो कई शक्ल भी दिखा सके। मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ हमारे मुल्क में कि हम करप्शन को एक्सेप्टेबल कर बैठे हैं। ये सबसे ज्यादा एक माशरे को तबाह करना है। माशरे के अंदर बुराई को एक्सेप्ट कर जाओ। एक बाहर भाग गया है, झूठ बोल के वो बाहर भागा हुआ है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठा है। यहां बड़े बड़े सहाफी कह रहे हैं जी उसे तकरीर करने दो। कोई किसी वकीलों ने कहा कि जी उसको फिर से उसके बैन खत्म करो, कि फिर से उसे इजाजत दो इलेक्शन लड़ने की। इमरान खान ने कहा कि हक का रास्ता आसान नहीं, मुश्किलात से भरपूर है। अपने बच्चों को बताना है कि इन असूलों पर रियासत मदीना ने बड़ी ताकतों को शिकस्त दी। उज़्बेक सदर का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर की 1-on-1 मुलाकात हुई। दोतरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म इमरान खान और उज़्बेक सदर तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उज़्बेकिस्तान के साथ गहरे ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उज़्बेकिस्तान के साथ तिजारत को बढ़ाएंगे। उज़्बेकिस्तान के सरमायाकारों से मुलाकात भी करेंगे। उज़्बेकिस्तान के मिलकर
मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर पर फिल्म बनाएंगे। पाकिस्तान से अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान तक ट्रेन चलाई जाएगी। मकबूजा कश्मीर में आर्मी कवानीन की खिलाफ वर्जी जारी है। दौरा पाकिस्तान का शिद्दत से इंतजार था, कोरोना की वजह से ताखीर हुई। उज़्बेक सदर ने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत और अवाम का मेहमान नवाजी पर मशकूर हूं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान सकाफती शोबों की बहाली के लिए काम करेंगे। पाक बहरिया के अब्दोस शिकन वारफेयर यूनिट की बड़ी कार्रवाई। यूनिट ने भारतीय अब्दोस का सुराग लगा लिया। TGI-SPR के मुताबिक भारतीय अब्दोस का 1 मार्च को सुराग लगाया गया। कामयाब कार्रवाई परवेज़ आला पंजाब का पाक बहरिया को खराजे तहसीन। पर कौम को है बड़ा नाज, पानी में वतन का दिफा करने वाले कौम के हीरोज को रोज न्यूज का सलाम। पाक बहरिया की बड़ी कार्रवाई, यूनिट में भारतीय अब्दोस का सुराग लगाया। ISPR पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भारतीय आबदूस का सुराग लगाने पर पाक बहरिया को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा है कि पाक बहरिया ने भारतीय आबदूस का सुराग लगाकर दुश्मन पर अपनी सलाहियत की धाक बिठा दी और भारतीय नेवी के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना है कि पाकिस्तान बहरिया का ये अहम कारनामा आला पेशा वराना सलाहियतों का आयनादार है। पाक नेवी किसी भी किस्म की जारहियत से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाकिस्तान के गहरे पानियों में 5वीं बार मुदाखलत करने की कोशिश की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गुज़िश्ता साल भी हमने भारतीय सबमरीन पकड़ी थी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमने भारतीय अब्दोस तबाह नहीं किया, वार्निंग दी है कि ताकि वो वापस चली जाए। शेख रशीद ने कहा कि भारत को आखिरी बार वार्निंग दे दी गई है, कोई पाक अफवाज की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। के गहरे पानियों में 5वीं दफा उसने ये मदाखलत करने की नाकाम कोशिश की है। 1 साल पहले भी हमने उनकी एक सबमरीन को पकड़ा था, लेकिन हम पुरअमन मुल्क हैं, हमने उसको मारा नहीं, लेकिन उसको वार्निंग दी ताकि वो वापस चली जाए। हमने उनको मतनबा किया और आखिरी बार वार्निंग दी है कि इनफ इज इनफ, 5वीं मरतबा आप हमारे पानियों के नजदीक आए, अब आए हैं तो हमसे गिला ना करना। और कोई पाकिस्तान के पानी पे, बर्री पे, बहरी पे, फजाई हदूद की तरफ मैली आंख भी नहीं देख सकता। हम अजीम फौज का अजीम मुल्क पाकिस्तान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोज न्यूज़।